Praise the Lord, grace and peace be upon all of you. Welcome to Hosting the Ark Day 16. Today we discover an amazing truth hidden inside the Ark of the Covenant. The three sacred items inside the Ark were not placed there by accident. Each one reveals God's response to humanity's greatest failure. The tablets of the law reveals God's response to idolatry. The golden pot of manna reveals God's response to unbelief. And Aaron's rod that budded reveals God's response to rebellion. आप सभी पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। होस्टिंग दी आर्क डे 16 में आपका स्वागत है। आज हम वाचा के संदूक में छिपे एक गहरे सत्य को समझेंगे। संदूक के भीतर रखी गई तीनों वस्तुएं संयोग से नहीं रखी गई थी। वे मनुष्य की सबसे बड़ी असफलताओं के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया को प्रकट करती हैं। व्यवस्था की पट्टियां मूर्ति पूजा के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया हैं। सोने का मन्ने का पात्र अविश्वास के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया है और हारून की फूली हुई लाठी विद्रोह के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया है। When Moses was receiving the law on Mount Sinai, the people made a golden calf and began to worship it. Idolatry is not only bowing before an image, but anything that takes God's place in our hearts becomes an idol. So the law exposed the sinful condition of humanity, and it showed that no one could become righteous by their own efforts. जब मूसा सीने पर्वत पर व्यवस्था प्राप्त कर रहे थे, तब लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा की। मूर्ति पूजा केवल किसी मूर्ति के सामने झुकना नहीं, जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लेता है वही मूर्ति बन जाता है। व्यवस्था ने मनुष्य के पाप में हृदय को प्रकट किया। उसने दिखाया कि मनुष्य अपने प्रयासों से धर्मी नहीं ठहर सकता। Romans chapter 5 verse 20 tells us, where sin abounded, grace abounded much more. The law of God revealed our need for a savior. God's answer to our failure was not rejection, but his answer was grace. रोमियो 5:20 कहता है, जहाँ पाप बढ़ा वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक बढ़ा। व्यवस्था ने हमें हमारे उद्धारकर्ता की आवश्यकता का एहसास कराया। परमेश्वर ने हमारी असफलता का उत्तर दंड से नहीं दिया, उसने हमें अनुग्रह प्रदान किया। Next we see the golden pot of manna. Even after witnessing miracles, Israel doubted God. Yet every morning God faithfully sent bread from heaven. The manna was heaven's answer to unbelief. इसके बाद हम सोने के मन्ने के पात्र को देखते हैं। अनेक चमत्कार देखने के बाद भी इस्राएल ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। फिर भी परमेश्वर ने प्रतिदिन स्वर्ग से मन्ना भेजा। मन्ना अविश्वास के प्रति परमेश्वर का उत्तर था। Jesus said in John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. Friends, the answer to unbelief is no more evidence. The answer is knowing Christ personally. He alone satisfies the deepest hunger of the human heart. यूहन्ना 6:35 में प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। अविश्वास का उत्तर केवल चमत्कार नहीं है, अविश्वास का उत्तर है प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानना। वही हमारे हृदय को गहरी भूख से तृप्त करता है। And finally we come to Aaron's rod that budded. Korah rebelled against God's appointed leadership those days, and after judgment, God caused Aaron's dead rod to bud, blossom, and bear fruit. This proved that the spiritual authority comes from God alone. अंत में हम हारून की फूली हुई लाठी को देखते हैं। कोरा और उसके साथियों ने परमेश्वर की नियुक्त अगुवाई के विरुद्ध विद्रोह किया। न्याय के बाद परमेश्वर ने हारून की सूखी लाठी को जीवित कर दिया। उसमें कोपलें निकली, फूल खिले और फल लगे। इससे सिद्ध हुआ कि सच्चा आत्मिक अधिकार केवल परमेश्वर से आता है। Aaron's rod points to Jesus Christ. His resurrection declared him to be our eternal high priest. He is the only mediator between God and humanity, and he still lives to intercede for all of us today. हारून की लाठी प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करती है। उनका पुनरुत्थान इस बात की घोषणा है कि वही हमारे अनंत महायाजक हैं। वही परमेश्वर और मनुष्य के बीच एकमात्र मध्यस्थ हैं। वे आज भी हमारे लिए विनती करते हैं। Now notice something remarkable. Above the law, above the manna, above the rod was the mercy seat.
God did not speak from the place of man's failure. He spoke from the place where the blood had been sprinkled. Mercy triumphed over judgment and grace becomes God's final word. अब एक अद्भुत बात पर ध्यान दीजिए। व्यवस्था की पट्टियों के ऊपर, मन्ने के पात्र के ऊपर और हारों के लाठी के ऊपर दया का आसन रखा गया था। परमेश्वर ने मनुष्य की असफलताओं के आधार पर बात नहीं की। उन्होंने उस स्थान से बात की जहां प्रायश्चित का लहू छिड़का गया था। दया ने न्याय पर विजय प्राप्त की। अनुग्रह परमेश्वर का अंतिम उत्तर बन गया। The ark reveals God's complete provision. The law exposes sin. The manna provides life. The rod confirms the priest, and all three are fulfilled in Christ Jesus. He is the fulfillment of the law. He is the bread of life. He is the eternal high priest. वाचा का संदूक परमेश्वर की संपूर्ण व्यवस्था को प्रकट करता है। व्यवस्था पाप को प्रकट करती है। मन्ना जीवन प्रदान करता है। लाठी महायाजक की पुष्टि करती है। और ये तीनों प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होते हैं। वही व्यवस्था की परिपूर्णता है। वही जीवन की रोटी है। वही हमारे अनंत महायाजक हैं। And as we continue hosting the presence of God, dear family, may our hearts remain free from idolatry and full of faith and surrender in the humble obedience to Christ. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तब हमारा हृदय मूर्ति पूजा से मुक्त, विश्वास से परिपूर्ण और प्रभु यीशु की पवित्र नर्म आज्ञाकारिता से भरा रहे। May God bless all of you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।